हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे अर्थ एज अ इंटीरियर एंड इट इज़ अ मटेरियल। इसका मतलब है जो है भूगर्भ और उसके पदार्थ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में अगर भूगर्भ और उसके पदार्थ हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next is the most important topic arrive here is the most important soil conservation. There is the most important soil conservation here. The soil is one of the most important natural resource. Which is substandard is the different types of leaves are directly, indirectly. Moreover, soil forming is a slow natural process. The soil is a forming is a slow natural process. The process of soil erosion not only destroyed this wonderful gift of nature in a short span time, it is a create a new problem like a flood, damage to the road, rail bridge, hydroelectricity project, and water supply and pumping station, etc. There is the most important here, the most important soil conservation here. Let's come to the soil conservation here. The soil conservation consists of this method which prevent of soil from the beginning removed. The method to control of soil erosion of different type in a different part of the world are under. There is the most important type here. The first here, a protection of forest. The soil erosion is a low down. There is a protection of the forest. The indiscriminated and a felling of tree in the forest has been one of the major case of soil erosions. Since the root of the trees holding the soil material together, it is a desirable of project, and these trees form such a feelings, and this is has led government to declare forest are reserve in which the felling of trees has been banned. There is a method of soil conservation is the most suited to be all types of landscape. The forests are also harbinger of rain, which is increasing the process of soil formation. There is the most important for the protection of forest. The next is the afforestation. The afforestation is the most important here. A planting of tree along the river course, based land, and mountain slope is another method of soil conservation. There is called the afforestation. Afforestation is the most important. The land, mountain, slope, there is a, trees are plantings. And the reduced or here exclusive erosion taking place in this is a reason as afforestation is also effective in the controlling winds erosions along their desert regions. Tree plantation along the desert bound stop a swelling of the agriculture's land by desert sands. In our countries is a large-scale planting of trees is a beginning carried out of Rajasthan, Haryana, Gujarat, Punjab to control the extension of Thar desert. There is a afforestation. There is the most important for the conservation of a soil. The next here is the flood control. There is the most important here during the rainy season. The amount of water in the river increasing, escalating, and which is a
turn in increasing the soil erosion. Dams are began to constructed to control the flood and consequently the soil erosion. And this can also be done by the diverting river water to dry or regions through their canal and by the other well planned method of water conservation. There is a flood is a control is the most important for a conserve of soil here. The next is the planet grazing. The overgrazing on the hill slope has helped the losing and washing away from soil is this area. If a grazing is carried out in a planet where it is will be reduced soil erosion by protecting a vegetation covered in this area which are comparative more permanent to the soil erosion. There is the most important here planet grazing. The overgrazing is a as a reason for the soil erosion, but less grazing is not a soil erosion. There is a prevention of the soil. The next here is the bondings. Bonding here is the construction of the bond or obstruction of the applied in land and affected by the gully erosion. That is the most important here, and this method is not only helpful in controlling soil erosion, but also is maintaining soil fertility and conserving water resource and the leveling of their sloping of land. The next is important here are tracing. Tracing is the most important to the conserve of poorly developing thing soil on the mountain slope. And tracing is another method. There is a tracing is most important in conservation of soil at a tracing method. Tracing refer to the construction of the terrace and the across the slope is a mountainous region, and this helps controlling the soil erosions and using water resource of this area economically and effective for growing different crops are this terrace. There is the most important here. The next here is the counter plunging. There is the most important is the counter is the plunging here, and this method of the soil conservation is the most suited to be a area having a rolling is a landscape. The plunging and tilling of the land along the contours level in order to the case is according to the run as across to the land slope and reduce the rate of soil erosion, and this method is also applied to the maintain the fertility and soil moisture. The next area here adaptations of stripping farming. There is the most important method adaptation of stripping farming. The stripping farming is the method is the most suited is a rolling plant and the region situated is a arise and semi-arise region. The field are divided into strips and the fanning is 1 year done on one trips while their other trips is a left uncultivated. There is a most important, and this grassy vegetation cover the left strip controls soil erosion and maintain to fertility of soil. The next year is a process is a reserve. Their reverse is the most important. The next year process here reserve is reverse. There is a most importantly here. The next here is a crop rotation. There is a most important here. A crop rotation refer to a systematic. Systematic here a succession of different crop cultivated in a given piece of land in order to avoid to the excavations of their soil. There is a more important here crop rotation. Crop rotation refer to the systematic succession of different crop cultivated, and thus rotation of the crop is applied to the conserve the fertility of soil from our cultivation of growing continually crop from where a population is a pressure is a more or limited agriculture land, and this method is applied in the most of the countries of the world. There is a most important here. This method is a used for all the country. And the next here is a reclamation of land. There is a most important here of conservation of soil. The soil erosion is also began to control it by the labelings. A land gullied down to the water channel and converted into the waste land are the remnants, and the method of soil conservation is the most suited in the river basin and hilly terrains, and the west area there is been to the level to the Kambal and Yamuna river to our country. That is the most important for reclamation of land. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है मृदा
संरक्षण, देखिए मृदा संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारे उपजाऊ मिट्टी जो है हमारे पास नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए मृदा संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण में से माना जाता है। और मृदा अपरदन कैसे करें इसके विषय में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे, और मृदा अपरदन के कौन कौन से मेथड है जिससे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है और यह एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का जो है भरण पोषण करता है। यहाँ तक इंसान का भी भरण पोषण जो है मिट्टी के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगर मिट्टी उपजाऊ न रहे तो कहते हैं इंसान भी जो है जिंदा रहना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कई साल लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण होने में। मृदा अपरदन की प्रक्रिया जो है प्राकृतिक इसे अनूठे उपहार केवल नष्ट ही नहीं किया जा रहा है, अतुल इसके अनेक प्रकार की समस्या भी पैदा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इंसान जितना विकसित हुआ है उतना ही जो है मिट्टी को प्रदूषण करने में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कहते हैं ये महत्वपूर्ण योगदान आगे चल के इंसानों के लिए एक सबब का कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते अगर इंसान समझ गया कि मिट्टी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे बचाया जाए, तो हो सकता है कि ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। मृदा अपरदन से बाढ़ें आती है और इस बाढ़ों से सड़कों, रेल मार्ग, पुल, जल विद्युत परियोजनाएं, जल आपूर्ति और पंपिंग केंद्र और काफ़ी हानि पहुंचती है। ये तो आपसे कुछ छुपा हुआ बात नहीं है कि मृदा अपरदन के कारण न जाने कितने डैम, कितने जो है परियोजनाएं, विद्युत, जल, कितने ही सरकार के जो है साल में नुकसान होती है, जिसका वर्णन शायद करना संभव नहीं है। लेकिन संभव तो ये है कि हम कुछ हद तक अपनी गतिविधियों से मृदा जो है अपरदन को रोक भी सकते हैं। मृदा संरक्षण स्थापत्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकते हैं, और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है। और इन विधियों का विवरण कुछ नीचे दिया गया है जिसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वन संरक्षण। देखिए वनों के वृक्षों की जो है धुआंधार कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण में से माना गया है। कहते हैं इंसान को जो है टॉप पे पहुंचने की जो आदत बन गई है, उसने क्या किया है, प्रकृति को नष्ट कर दिया है। और इसके कारण क्या हुआ, बहुत से पेड़ पौधों जो है खुलेआम काटी जा रही है, बहुत ही समस्या जो है मिट्टी के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए वन संरक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है धनाधूर जो है कटाई में, यानी वृक्षों की कटाई के कारण प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। वृक्षों की जड़ें जो है मृदा पदार्थों को बांध के रखती है, यानी कब्ज के जो है पेड़ पौधे रहते हैं तो मिट्टी के जो होते हैं बंधे हुए रहते हैं। यही कारण है कि सरकारों ने वनों को सुरक्षित घोषित कर दिया है तथा इन वनों में जो है वृक्षों की कटाई पर रोक भी लगा दी गई है। मिट्टी का संरक्षण कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यह विधि सभी प्रकार के भू जो है भागों के लिए उपयुक्त होती है, यानी कहीं भी आप चले जाओ इस प्रकार के मेथड जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है। वनों को वर्षा लाने वाले दूत कहा जाता है। अगर मान लीजिए वन नहीं रहेगा तो वर्षा होने की चांसेस भी नहीं रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि आज के समय जो है वर्षा ने अपना समय अवधि चेंज कर लिया है। जब वर्षा नहीं होना होता है तब वर्षा होती है, जब वर्षा होने का समय होता है तो नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वृक्षरोपण। देखिए वृक्षरोपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आपने मिट्टी को बचाना है, संसार को बचाना है तो वृक्षरोपण भी करना ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। नदी, घाटियां, बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की सबसे दूसरी विधि में से माना जाता है। इसे प्रदेशों में मृदा का अपरदन कम हो जाता है और मसले सीमांत क्षेत्रों में पवन अपरदन की नियंत्रण करने के लिए जो है वृक्षरोपण एक प्रभावी उपाय माना गया है। कहते हैं वृक्षरोपण तो दूर की बात है, लोग जो है इसको दिन पर दिन काट के जो है इसको कम से कम करने पे लगे हुए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों को सीमावर्ती भागों में जो है वृक्ष लगाकर रेगिस्तानी रेत को खेतों में जमने से रोका जा सकता है। इस तरह जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों की वृद्धि पर अंकुश लगता है। हमारे देश में थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा पंजाब में बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बाढ़ नियंत्रण। देखिए वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। ये तो आपको भी पता है कि वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ती है और इससे मृदा अपरदन में वृद्धि काफ़ी हो जाती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों का बांध बनाए गए हैं और इससे मृदा का अपरदन रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। नदियों के जल को नहरों द्वारा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़कर तथा जल संरक्षण के अन्य सुनियोजित विधियों द्वारा भी बाढ़ को रोका जा सकता है।
है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विधियों में से एक माना गया है। कहते हैं नियोजित, देखिए नियोजित चराई, चराई की वजह से यानी ग्रासिंग की वजह से भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की मृदा ढीली हो जाती है, यानी पेड़ पौधों को जो है जानवरों द्वारा खिला देना जो है वहाँ की मिट्टी को ढीला कर देने के बराबर है। और जल इन ढीली मिट्टी को जो है आसानी से बहा ले जाती है, क्योंकि मिट्टी अगर ढीली हो जाएगी तो बहाना जो है संभव हो जाता है। इन क्षेत्रों में जो है नियोजित चराई से वनस्पति के जो आवरण को बचाया जा सकता है, यानी हम उसमें कम से कम चराएं जिससे जो है बचाया जा सकता है। और इस प्रकार इन क्षेत्रों के मृदा अपरदन को कम भी किया जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि में से एक माना जा सकता है। तो इसके लिए जो है बांध बनाना अगला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बांध बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी को संरक्षण करना चाहते हैं तो बांध बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अवनालिका अपरदन से प्रभावित जो भूमि में जो है बांध या अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और यह विधि न केवल मृदा का अपरदन रोकती है अतुल इससे मृदा की उर्वरकता भी काफ़ी बनी रहती है। जल संसाधनों संरक्षण जो है भूमि की समतल करने में भी जो है बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपनी भूमिका अदा करती है। उसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट है सीढ़ीदार खेत बनाना। देखिए अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों पे मृदा संरक्षण की जो है सीढ़ीदार खेत ही बना करके एक अन्य विधि है जो कि बहुत काफ़ी आसान विधि भी है। सीढ़ीदार खेत बनाने से तरपते जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान के पार जो है आर पार जो है समतल चबूतरे बनाने से है। और इस विधि से इन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन जो है रुक जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही जल संसाधनों की समुचित उपयोग भी हो जाता है और इस प्रकार खेतों में फसलें उगाई जा सकती है, जो कि बहुत काफ़ी जो है कारगर सिद्ध भी हो सकता है। इसे सीढ़ीदार खेत जो है पर्वतों पर जो है करना अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समोच्च रैखिक जुताई। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृदा संरक्षण की यह विधि जो है तरंग गति भूमि वाले प्रदेशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। भूमि के सामान्य ऊंचाई पर जोतने से हल के जो है कुड़ यानी नलियां ढाल के आर पार बन जाती है और इससे मृदा के अपरदन की गति में भी काफ़ी कमी आ जाती है। और यह विधि मृदा उर्वरकता और अनर्गता बनाए रखने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए समोच्च रैखिक जुताई जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कृषि की परतदार विधि अपनाना। देखिए मृदा संरक्षण की यह विधि जो है मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय प्रदेशों के लिए तरंग गति मैदान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में खेतों को जो है पट्टियों में बांट दिया जाता है, यानी खेतों को जो है पट्टियों के रूप में बना दिया जाता है और एक जो है पट्टी में एक जो है साल खेती की जाती है, जबकि दूसरी पट्टी बिना जोते बोए खाली पड़ी रहती है। छोड़ी गई पट्टी की वनस्पति का आवरण मृदा अपरदन को रोकता है तथा जो है उर्वरकता बनाए रखता है। अगले वर्ष इस प्रक्रिया को जो है उलट दिया जाता है, यानी जिसमें पहले जो है छोटे छोटे खाली छोड़ दिया गया था उस पर कृषि करते हैं और जिसमें कृषि किए थे उनको खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, कारगर भी रहता है, लेकिन आज के समय में ये अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ती चली जा रही है तो खेती करना भी जरूरी है। नहीं तो कहते इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अन्य पूर्ति करना शायद किसी भी देश के लिए संभव न हो। आगे है स्ववर्धनन। देखिए स्ववर्धन से तरपते मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए चुने हुए खेतों में विभिन्न फसलों की बारी बारी बोने से है। हाँ, ये प्रक्रिया जो है कई मायने में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम फसलों की जो है रोटेशन करते हैं, यानी बारी बारी फसलों को बोने से इस प्रक्रिया जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं इस प्रकार जो है स्ववर्धन के द्वारा जो है ऐसे खेतों की उर्वरकता भी बनी रहती है जिनसे लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां जनसंख्या के दबाव के कारण खेती के लिए भूमि कम रह गई है और यह विधि संसार के अधिकतर देशों में अपनाई भी जाती है और यह काफ़ी सशक्त भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे जनसंख्या की जो है अन्य पूर्ति भी हो जाती है और खेती की जो उर्वरकता है वो बनी रह जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमि उधार। देखिए उधार के क्या मतलब है। कहते हैं जल द्वारा बनी ख्यात भूमियों को जो है समतल करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी आप समतल करके भी जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण की यह विधि नदी घाटी
और पहाड़ी प्रदेशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। हमारे देश में जो है चंबल, यमुना नदियों के उखात भूमियों वाले जो है विस्तृत क्षेत्रों के इस विधि द्वारा जो है समतल किया जा रहा है और इससे जो है भूमि उधार के रूप में देखा भी जा रहा है कि हो सकता है कि इससे मृदा अपरदन में जो है काफ़ी हेल्प मिल जाए। कहते हैं मृदा संरक्षण की विधियां जो हमने पढ़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उधार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक लगा देना, पट्टीदार या सीढ़ीदार कृषि, समुच्चयरेखित जुताई और संवर्धन। देखिए सारे के सारे विधि जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट है जिसको अपनाना चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।